ایکچولی میں میل نہیں ہوں، فیمیل ہوں. میری آواز جا رہی ہے کیا؟ جی جی محترمہ، معافی چاہوں گا. ہوں. آپ کیسی ہیں؟ نہیں، یہاں پہ تو خیریت لینے کے لیے میں نہیں آئی ہوں آپ کی. جو آپ باتیں کر رہے کیوں؟ تھے اس سے تو میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں. پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ کس سے بلونگ کرتے ہیں؟ کس سے بلونگ کرتا ہوں بتائیں. مطلب جیسے آپ سب سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس مذہب سے بلونگ کرتے ہیں، تو آپ کس سے بلونگ کرتے ہیں؟ مذہب نہیں، میں تو مسلک پوچھ رہا ہوں. اسلام ٹھیک میں ہے، آپ مسلک نہیں ہوتے؟ نہیں، آپ فرقے نہیں بتائیے ہوتے؟ آپ کس فرقے سے ہیں؟ اچھا، میرا فرقہ ہے نہیں کیونکہ میرا مذہب نہیں ہے. مطلب آپ بنا مذہب کے ہیں اور ہمارے مذہب پہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. جی پہلے مذہب تھا ہمارا، اسلام تھا. پہلے ابھی تھا نہیں ہے، ابھی چھوڑ دیا. مطلب آپ نہیں مانتے کہ اللہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی تھے؟ آپ نے اسلام چھوڑا کس بیس پہ؟ کیونکہ اسلام مجھے قتل کرنے کا حکم دیتا ہے. آپ کے ماں باپ نے کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ میرے ماں باپ نے نہیں کیا، لیکن اسلام تو دیتا ہے نا. نہیں، لیکن آپ کے ماں باپ نے سکھایا صحیح اسلام تو آپ کے ماں حضور باپ آپ کے ماں باپ حضور میرے پاک کی ماں بات چھوڑ باپ نے دیجیے، آپ ان کا کمپیئر کر ہی نہیں سنیں. سکتے ہیں. حضور پاک کا کمپیئر اچھا، آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کے ماں بخاری کی باپ نے حدیث کتنے 25 ہے. حضور نے کہا مجھے ایک تب تک منٹ قتال سب کرنے سے کا پہلے حکم دیا ہے تب تک جب تک لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر دیں، اور یہ نہ کہہ دیں کہ امام میں صاحب بھی اللہ کا امام رسول ہوں، صاحب محمد رکے، رسول اللہ. آرام سے بات کرتے ہیں، آرام سے بات کرتے ہیں. دیکھیں، میرے ماں باپ کوئی عالم دین نہیں تھے، ٹھیک ہے. ہاں تو اسلام ہمارے مطلب پاس کس کے آپ کی ذریعے آیا؟ فیملی سنیں. پیچھے فیملی آپ کی مسلم، آپ کی اسلامک نہیں تھی، اسلام کے نہیں جانتی تھی. مطلب یہ آپ ہندو تھے، آپ اچھا جھوٹے بنے ہوئے نہیں، مسلم ہیں. میں نے یہ کہا آپ کو، میں نے کیا تو کہا؟ کیسے آپ کے ماں عالم باپ دین نے نہیں آپ تھے. کے عالم دین کا کیا مطلب ہوتا ہے محترمہ، ذرا بتائیں مجھے. اچھا آپ اچھا انہوں نے مسلمان ہیں، آپ کو عالم دین کا مطلب بتائیں. ایک منٹ کیا عالم آپ دین بتائیے. کیا ہوتا ہے پہلے آپ یہ کو بتائیں. انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ڈیپ میسج، ڈیپ میننگ بتائی آپ کو؟ نہیں، وہ مجھے میسج پتا ہے، لیکن مجھے یہ حدیث بھی ملی ہے کہ جو کوئی جی، اسلام کو چھوڑ دے گا، اسلام سے باہر نکل جائے گا، اس کی سزا موت ہے. آپ کو ملی موت کی سزا؟ اور آپ جیسے ملی پرانے نہیں، بہت لیکن سال سے حدیثیں چلے تو گئے ان ہیں. کو مل رہی ہے. حدیثیں تو ہیں، آپ پاور حدیثیں نہیں ہے نا، ہیں. ڈومینیٹ نہیں کر رہے، شریعہ رول پاور نہیں نہیں چل ہے رہا ہے، نا، اس لیے یہ نہیں دے سیکولر ملک ہے. یہ سیکولر ملک ہے نا محترمہ. یہاں اگر کبھی ایسا نہیں ایک کہ منٹ میری محترمہ بات سنیے، میری بات ایک سنیے. سیکنڈ، کوئی اگر بات نہ کرے، اگر کوئی بات سارے نہ کرے. لوگوں کا قتل محترمہ کیا کا گیا مجھ پہ ہوتا، الزام ہے، مجھ سے بات کریں. ایک منٹ، سنیں آپ. اگر سارے لوگوں، ہاں. سارے کافروں کا قتل کیا گیا ہوتا تو آپ آج پیدا ہوتے؟ اچھا، لیکن میرے آپ ماں ہوتے؟ باپ تو مسلمان تھے نا. میں ایک سیکنڈ، یہ خاتون کیا حال ہے آپ کے بھی؟ بہن جی ٹھیک ہے؟ اب تو ہم سے خیریت نہ لیں، سیدھا سوال کریں. نہیں آپ ٹھیک ہیں؟ آپ طبیعت ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک نہیں ٹھاک ہے گھر بالکل میں؟ ٹھیک نہیں، نہیں اوکے، بالکل ٹھیک نہیں ہے آپ نہیں، لوگ کے. تھوڑا ہاں بالکل ٹھیک آپ نہیں. کی اوکے. آواز گھبراہٹ میں لگ رہی ہے نا فیضو بھائی محترمہ، اس فیضو لیے. بھائی فیضو گھبراہٹ بھائی نہیں، اس فیضو کو غصہ بولتے ہیں، اس کو فیضو بھائی غصہ ویٹ بولتے فیضو بھائی ہیں. ویٹ فیضو بھائی ویٹ. اوکے. تو غصے میں تو بات کرنے میں مسئلہ ہو جائے گا نا. آپ تھوڑا سا پانی شانی پی لیں، ریلیکس ہو جائیں. نہیں، آپ اپنی باتیں رکھیں، یا ہم خیریت دینے کے لیے نہیں جوائن ہوئے ہیں. نہیں، اگر آپ ایکس مسلم بن رہے ہیں کسی اور ریلیجن میں کیوں نہیں جا رہے؟ میری یار بات. سلمان صاحب آپ ذرا چپ کر جائیں پلیز، ورنہ آپ کو بیک سٹیج کر دیں گے. ذرا خاتون ایک آئی ہیں، ان منٹ، سے ذرا بات ایک کر لیں گے. جی جی ایک تو خاتون. آپ لوگ کسی کو کسی بھی لیتے جوائن نہیں کرتے ہیں، جو جواب دے سکتا ہے اس کو بیک کر دیتے ہیں. نہیں ایک نہیں، عامر، آپ مجھے بتائیں میں آپ سے بات کروں یا ان سے کر لوں؟ میں آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہوں، آپ کو مائک دیا ہے، ان کو میں نے چپ کروایا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جواب دے سکتے ہیں. پھر آپ چپ کر جائیں، میں ان سے بات کر لیتا ہوں. کیا کرنا ہے آپ بتائیے. نہیں ٹھیک ہے، ان کو سائڈ میں رکھیے لیکن بیک اسٹیج تھینک نہیں یو. کرنا ہے. اوکے، تو اسی لیے ان کو چپ کروایا نا کہ بھائی جان یا تو آپ چپ کر لیں یا آپ کو بیک سٹیج کر دیں گے، دونوں میں سے ایک کام کرتے ہیں. اب آپ بتائیے آپ کو اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے جو عامر صاحب کے ساتھ آپ کی جو کمیونیکیشن چل رہی تھی اس میں آپ اتنے بڑے بڑے بلیم لگا دیے، اور ہم ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ پہ کوئی پیرنٹ پہ انگلی اٹھائے تو ہم برداشت نہیں ہوں کر سکتے. ابھی تو آپ کے وہ ہوں کون سے آپ کے فیض، جھوٹے فیض جو ہوں. تھے، ان کے پیرنٹس ایسا نے ہم نے ایسا ذرا نہیں سے کہا یار میں کہا. نے، فیض ایک آپ سیکنڈ، سیدھے فیض جھوٹی بولنے دے، بات کیا کر رہے ہیں. فیض ایک بولنے دے منٹ، یار، صبر کر لے، کچھ نہیں ہوتا. تو ان بولنے کو دے. بڑا غصہ آ گیا ابھی فیض کو، ہوں. اور وہ اچھا. ہمارے نبی ہوں کو کچھ بھی بولتے چلے جا رہے ہیں. آپ ہوں پہلے اتنا تو سوچیے کہ آپ آن لائن آ کے اس کو کیا بول رہے ہیں، کس ورڈ کو ہوں یوز کر رہے ہیں. ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ جو سارے ورڈز آپ یوز کر رہے تھے جو ہم تو بولنا بھی نہیں چاہ رہے کیونکہ تو ہمارے نبی ہیں، وہ آر سے اسٹارٹ ہو رہا تھا اینڈ واٹ ایور. ہاں تو جی. آپ لوگ کو تو شرم آئے گی نہیں، لیکن ہمیں اوکے سن کے غصہ آ رہا ہے. ہمیں پرفیکٹ. تو اچھا ہمیں تب تو آپ کو غصہ کس بات پہ آ رہا ہے؟ ذرا وہ بات بتائیں، کس بات پہ آپ کو سب سے زیادہ غصہ آیا؟ دیکھیں ابھی آپ نے فیض صاحب کو جھوٹا بولا، میں نے ان کو چپ کرا دیا
क्यों चुप करा दिया कि यार वो झूठ नहीं, सच सब्र बोले झूठे तो आप भी बीबी हमको लग रहे बीबी हैं। जी सब्र तो करें ना। देखें आपने हम कहा मैं कोई उनको इमाम नहीं, और मैं बीबी कोई जी इमाम सब्र, नहीं बीबी आपकी जी अब तरह। सब्र ना, मेरी मैं बारी भी तो कोई बोलने दें, आपको 5 मैं मिनट कोई बोलने वो दिया। झूठे फैज की तरह मैं इतने ज्यादा उनको और तो बीबी सारी जी वो मैं तो मुझे और बड़े बीबी जी ताज्जुब हो रहा था। गुस्सा करना है वो आपने? कह रहे अच्छा चले मैं ऐसा करता हूँ, 2 मिनट फुल देता हूँ, आप गुस्सा कर लें, पहले गुस्सा निकाल लें फिर बात कर लेंगे, क्या ख्याल है, क्या मुझे करना आप नहीं गुस्सा अब इसी है? बात ओके, पे, अगर अब मुझे आप आप लोग सिर्फ ये बताएं कि फैज ने ऐसा क्या बात कहा कि आपको गुस्सा आ गया? फैज ने ऐसी कौन सी बात कही कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए? गिव मी एक वन, मुसल कोई एक तो बात बता एक दें। एक ऐसी बात फैज ने की हो जो कोई मुसलमान तो कोई बीबी जी मुस्लिम एक तो बता जो दें। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन रखता है, उसे गुस्सा ना आए। अब बाजी फैज बाजी ने ऐसी देखें, कोई मैंने बात आपसे कही कहा हो? एक बता दें, हम कह रहे कोई वन। एक आप एक ऐसी बात बताइए जो फैज ने सही की हो और गुस्सा दिलाने वाली ना अब की भाई हो। यार हद हो गई, कोई एक तो मैं बताओ ना। मैं कह रही हूँ आप एक पर्सनल बात गुस्सा है, कोई बताओ। फैज आपके घर आ गया आप था, आपको आंख मार दी थी, और भाई एक बात तो बताए ना। वो मेरे आंख मारने लायक का है ही नहीं, उसकी तो बातें फिर भी उसकी कोई एक बात तो बताए ना जिस पे बात करूं आपसे। मैं क्या कह रही हूँ, आप उसकी एक कायदे और की बात बीबी बताओ कि एक इसने बात तो बताए ना, इसने क्या ये मोहम्मद ने बात 9 सही साल, अच्छा चले कही। एक बात मैं कर लेता हूं, अभी जो फैज बात कर रहा था उसमें एक बात थी कि मोहम्मद ने 9 साल की उम्र में एक लड़की के साथ सेक्स किया जब मोहम्मद 55 साल का था, क्या आप इसको नहीं मानती? ये अब दूसरे हदीस में कुछ और लिखा है, फिर मैं वो बता दूं? यार वो बता देना मुझे, पहले अब इसको प्लीज बता दूं सलमान भाई फिर आप इस पे इसको कर ले क्लियर हम। करें। हाँ पहले ये बताएं, क्या उसने ये बताया, ये हदीस पे लिखा है ना कि मोहम्मद ने 9 साल की उम्र में सेक्स किया? ये अच्छा ये जो वर्ड का यूज कर रहे हैं ये कहाँ लिखा है? ओके, अगर मैं ये दिखा दूं ये वर्ड लिखा है एज इट इज, तो क्या करेंगे? आपको सही हदीस सलमान में दिखा दूं वर्ड सेक्स का, इंटरकोर्स का, क्या करेंगी? ये ले पकड़े, ये आपके पास हदीस आ गई, सुने जैसे अभी दाऊद जैसे की हदीस है, एक सेकंड सुन ले, अब सुन ले, स्क्रीन पे लाएं यार, किसके पास है कमांड? नहीं स्क्रीन पे नहीं आ रही है हदीस। ओके ये देखें जी, स्क्रीन पे आ गई, ये कहती है कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 7 years old, द नरेटर आल्सो सेड 6 एंड ही हैड इंटरकोर्स मी व्हेन आई वाज 9 years old। स्क्रीन छोटी करें, साइड पे जरा लोग नजर आए, साइड वाली स्क्रीन लाएं। तो मुझे बताइए अगर फैज ने ये बात रखी है, इसमें गुस्से वाली क्या बात है? मोहम्मद नहीं ने ये 9 एक साल की बच्ची के साथ सेक्स किया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट ये एक मिनट अगर किया तो उनसे शादी की थी कि नहीं? भाई शादी करके की, 55 साल का बंदा जब 9 साल की बच्ची के साथ शादी कर रहा है, सेक्स कर रहा है, इसको हम पीडोफिलिया कहते हैं। फैज ने गलत बात क्या कही? नहीं शादी की थी कि नहीं पहले ये जी जी, बताइए। शादी करके भी करें, हम उसे पीडोफिलिया कहते हैं। पीडोफिलिया 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 का मतलब ही होता है सेक्स करना अंडर एज गर्ल के साथ। अंडर एज आपका मतलब है 8 इयर्स में मतलब लड़कियां बालिग नहीं होती, आपका ये मतलब है? तो आप मैं जाइए कहता हूं साइंस जी में। आपकी नहीं आयशा एक मिनट 4 साल हमारे में इस्लाम बालिग हो में गई थी, आई डोंट केयर, आपकी आयशा 4 साल में बालिग हो गई थी। मैं ये कह रहा हूं 55 साल के बाबे ने पर 2 साल की हमारे बच्ची के साथ सेक्स इस्लाम किया। कहता है, हमारा इस्लाम कहता है कि जब लड़कियां बालिग हो जाएं तो शादी निकाह के लिए और तैयार बाजी हैं। आप अपनी क्योंकि बेटी आप की कोई शादी नहीं होते करवाना हैं, 55-60 आप साल के कोई नहीं बाबे से। होते हैं, आप कोई नहीं होते हैं। इस पे भाई मैं होता हूँ, उंगली उठाने वाले की वो 9 साल की थी कि और कितने बीबी साल की थी? बीबी इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। मैं होता हूँ, मैं बोलूंगा, आप नहीं, आप तो इस्लाम कबूल आप रखना चाहती सही है? ओ बोलिए, भाई तो मेरी आप बात सही सुनो, बोलिए। सलमान एक क्या से सबर करो बोलते यार, सबर करो, नहीं पहले नहीं तो बीबी गर्म हुई हुई है ना, मैं इनको जरा ठंडा कर लूं फिर बात करेंगे आपके साथ। नहीं अब आप आपके मुझे साथ ये तो मैं ठंडी बताइए, नहीं हो आप पाऊंगी। नहीं होंगी तो और गुस्सा करें, अगला पॉइंट दे। फैज ने वो बताया जो हदीस में लिखा हुआ है, अब फैज गलत नहीं, हदीस गलत है, अबू दाऊद को गाली निकालें, अबू दाऊद को गुस्सा करें, आयशा ने हदीस बोली, आयशा को गुस्सा करें, वो तो जो लिखा हुआ है वो बोल रहा है। हदीस का प्रचार करना सवाब है। मोहम्मद ने कहा जिसने मेरी एक हदीस का प्रचार किया वो जन्नती हो गया। अच्छा ये हदीस निकाल के आप जन्नती बन रहे हैं? मैं नहीं जन्नती बन रहा, मुझे बनने की जरूरत भी नहीं है। जन्नत तो प्रोस्टिट्यूशन हाउस है जहां पे औरतें मेरा इंतजार कर रही होंगी सुबह से लेकर शाम तक सेक्स करवाने के लिए, और मेरी बीवी जी बैठी होगी मुझे नहीं, बच्चियां देने के लिए। अरे पत्थर जाहिलो बच्चियां। जाहिलो जाहिलो वहां पे सेक्स किस चीज नहीं का होगा, है। क्या होगा, आपको नहीं पता, वहाँ हूरे आपके उसके आपके एंजॉयमेंट के लिए नहीं बनी है। वहाँ पे क्या उस होगा, तरह के क्या करेंगी, एंजॉयमेंट के लिए नहीं, जो आप किस लोग चीज के लिए हूरों बैठेंगी? का जो तसव्वुर करके आप लोग बस एक ही चीज दिमाग में मैं आपको आती है, तसव्वुर वो करके उसके लिए नहीं मुझे आता है जो, और लेकिन बहन आपको तो और बहन मिलेगी जी भी नहीं, और आपको बहन जी हूर तो सब्र करें, नसीब भी नहीं और होगी, मुझे तो और कुछ वो चाहिए भी हूर नहीं ना, उसके लिए नहीं है। सारी मुझे प्रोस्टिट्यूट चाहिए भी नहीं, आप रखिए अपने पास प्रोस्टिट्यूट सारी, वो मेरे सेक्स के लिए नहीं होंगी, किस चीज के लिए होंगी? अल्लाह ने कुरान में उनकी वर्जेनिटी की एग्जांपल क्यों दी है, वर्जेनिटी के बारे में क्यों कहा है? आपके उलमा क्यों कहते हैं कि उनका हाइमेन बहुत इलास्टिक होगा, जितनी दफा सेक्स करोगे डिंग डोंग करोगे अल्लाह मियां उसको दोबारा वर्जन बना देगा? ये आपके उलमा क्यों कहते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, आपको पता है अस्तगफिरुल्लाह, आपके उलमा ये बात कर रहे हैं, मुझे क्या कह रही है? जाहिलों से बातें करना भी हमारे यहाँ मना है, तो हमको मना लग है? रहा है आप कि जाहिल यहाँ हो। क्यों आई हैं? आप यहाँ पे क्यों आई हैं फिर? हाँ, आप लोगों से जो आप लोग इतनी
सबको चुप करा रहे हो ना, बुरे बुरे वर्ड्स निकाल के, उसपे हमें बाजी बीच में मैं बहुत नहीं ज्यादा चुप गुस्सा करा आ रहा रहा, था। आपकी कुरान में लिखा हुआ है, आपकी क्या तफसीर में कुरान लिखा में हुआ क्या है। लिखा है? नहीं, कुरान ये को तो देखिए बीच में चले ना लाइए कुरान में प्लीज, क्या आप लिखा लोग हुआ है। जाहिल लोग हैं। कुरान सूरह वाकिया की आयत नंबर 36 क्या कहती है, बताइएगा जरा, बताइए आप। बताइए। मैं रट के नहीं बैठी हूँ, मैं आपकी तरह तैयार नहीं मैं बता बैठी देता हूँ। हूँ, तैयार मैं नहीं होती तैयार तो आपने जो हूँ, मैं टॉपिक आपकी तरह तैयार नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। और बीबी जो आपने टॉपिक क्या है वो मैंने दिया आपको। मुझे बताएं कि जब कुरान चैप्टर नंबर 56 वो कहता है फाजा अलना अबकारन, अबकारा, इसमें का मतलब क्या है कि वो अल्लाह मियां ने हमेशा की वर्जन बनाई है, मतलब है कि नहीं है? अपना कुरान में ट्रांसलेशन खोलें, मैं आपको दिखाता हूं कि आपके उलमा क्या कह रहे हैं। इस वक्त ई कुरान जो है ना वो वंस अगेन साइट में मजीद चेंजेस कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। इब्ने अब्बास ने कहा अल्लाह ने उनको वर्जन बनाया, अल जलालैन ने कहा मेड देम वर्जन इमैक्युलेट एवरी टाइम देयर स्पाउस एंटर देम, जितनी दफा भी उसका मर्द उसके अंदर डालेगा, ही विल फाइंड देम वर्जन्स नोर देयर विल बी एनी पेन ऑफ डिफ्लोरेशन, ना तो उस बीबी को पेन होगी, दर्द होगा डालने का। लिखा है, दिखा इंग्लिश लिखी गई हुई है, एवरी टाइम देयर स्पाउस एंटर देम, वो जितनी भाग दफा गई, उसका स्पाउस उसके अंदर डालेगा। मैं लिख रहा हूं, जलालैन को गाली निकाले, वो भाग गई। इतना सही था। रोना है कि नाउजुबिल्लाह वो सेक्स के लिए नहीं है, पता है कुछ नहीं। तुम्हारे स्कॉलर अली स्कॉलर क्या कह रहे हैं, हमें आगे आइडम, इतनी ये सी हजरत उमर का हवाला मान रहे थे सलमान, मुझे वो कुर्तुबी में मिल नहीं रहा कि एक बच्चा जो है वो हजरत उमर के दौर में 2 साल बाद पैदा हुआ 2 साल नहीं आदमी बहुत के। दफा पैदा हुआ, क्या मसला है इसमें? हाँ भाई हाँ, सलमान, अब तू आ, वो ना अब दिखा तू आ, दे। पहले रुक जा भाई, रुक जा। दूसरी हदीस कौन सी है? 9 साल की बजाय कितनी साल में सेक्स हुआ? हदीस दे, अब तेरे से बात करता हूं मैं। 17 to 18 ये लिखा हुआ दिखाए, है हदीस दे, हदीस दे, हदीस दे, असर सादिक द ईयर हदीस ऑफ दे, दिस में लिखा हुआ है मौलाना शिफी। हदीस दो, हदीस दो। ओ भाई बोल तो रहा हूँ असर सादिक में। ले ना कह रहा असर सादा दे, स्क्रीन पे ला, लिंक दे। तमीज से बात कर भाई, तू को इधर पैसे कमाने आया हुआ है, मुझसे हाँ मैं पैसे पैसे वसूल कमाना है, कर। पुट ले जो पुटना है। अब मुझे बता, हाँ हदीस दे, लिंक दे। भाई, हिस्ट्री चैनल के मेरा है बायोग्राफी नहीं, में चैनल मेरा है नहीं, पैसे मैं कमाने हूं, दूर फिटे मुंह तुम्हारी औकात के ऊपर, दिमाग तुम्हारा मुझे पैसे से पता हटके है ना, नहीं है। तेरा दूसरा चैनल मुसलमानों है की भाई। सारी औकात जो है ना पैसे पे है, और हूरों पे है, बच्चियों पे। मोहम्मद ने जो आप लोगों को सही चीज पे लगाया हुआ है, पैसा और बच्चियां, तीसरा काम आप लोगों के पास है ही कुछ नहीं। हाँ मेरा तुम्हारे चैनल भी पास नहीं है, क्या मैं पैसे कमाने हैं, दूर फिटे मुंह तेरी औकात के ऊपर और तेरी भाई? ज़हनियत के ऊपर, लानत हो तेरे ऊपर एक्स अल्लाह की। मुस्लिम्स के हर कोई चैनल अलग अलग हैं जिसमें पैसे कमाए जा रहे हैं, हाँ इस पैसे वजह कमाए से जा रहे हैं, मेरा ताकि चैनल भी नहीं है, मुसलमान मैं को पैसे कमा रहा हूँ, फिटा ही मुंह तेरी औकात पे। आगे चल, हदीस दे, रेफरेंस दे, लिंक तुम दे, असल मुद्दे पे आ, सुन सुन भाई, पहले हिस्ट्री पे जा। असल मुद्दे पे आ। द प्रॉफिट सन भाई, सुन रेफरेंस के साथ बोल, मैं जितना कुछ बोल सुन रहा हूँ रेफरेंस के साथ बोल रहा हूँ, तुझे और रेफरेंस सुन के साथ बोलना भाई, नहीं तो नहीं सुन बोलना। मैं तो सुन भाई, पहले हिस्ट्री पे जा, ठीक है ना? ये अपनी औलानिश ना हिस्ट्री, इधर दिखा, ठीक हिस्ट्री है पे ना? जाता हूँ मैं, हिस्ट्री पे जाता हूँ, पहले इस मुद्दे पे आ जो मैं बात कर रहा हूँ। ओ भाई सुनेगा तू? नहीं चल नहीं सुना तो चल फिर, कोई नहीं। चल फिर तू निकल, दफा हो यहाँ से, तू यहाँ असल क्या में कर रहा बात है? सुनने की हिम्मत नहीं तुम लोगों में। भाई मुझे रेफरेंस के साथ बोलो, मैं भाई सुनूंगा। बोला ना, असर सादेत में है भाई, दो ना हिस्ट्री मुझे बायोग्राफी हदीस में। दो, निकाल के दिखाओ, मैं भी तो देखूं कौन सी हदीस है, किसकी हदीस है, किसने लिखी है, नरेटर क्या है, चेन ऑफ नरेशन क्या है, मौलाना शिबली उसको ने सही लिखी है किसने भाई। कहा है? अबे और डंगर शिबली ने लिखी है, शिबली नुमानी मेरे पाँव की जूती के नीचे बैठता है, रोज तलवे चाटता है मेरे। और भाई भाई उसने तू मेरे किसके पाँव के रेफरेंस से नीचे लिखा है, बैठता है, उसकी बस चेन तेरी ऑफ औकात नरेशन है, क्या है? व्हाट इज तेरी द चेन ऑफ औकात है। नरेशन? भाई बात सुन, हदीस का अबे ज़ईफ हदीस उसकी है कोई? चेन ऑफ नरेशन क्या है, मुझे दे, मैं देखूं, चेन को देखूं, पता करूं किसने सही कहा है, भाई किसने ये गलत कहा है, हिस्टोरियन है। कहते ओ फिर शिबली नोमानी 100 साल पहले गुजरा था, हम तुम्हें पता है ना 1200 साल पुरानी यार। हदीसें दिखा रहे हैं। भाई मैंने तो कहा है, भाई मुझे दो पहले सुन रेफरेंस भाई, दो। ओ पहले सुन भाई, अगर सुननी है तो तू दो बात कर। जब तक मुझे रेफरेंस दोगे, मैंने नहीं सुनना। किसने कहा कि मैं रेफरेंस के बगैर मना सुनूंगा? मैं रेफरेंस के बगैर भाई, बोलता ये हूँ कुछ? बुक है, सुन भाई, ये बुक है असर सादेत की, जो द भाई ईयर ऑफ ब्लिस मुझे बाय नहीं मौलाना परवाह, शिबली, मुझे नहीं वर्स परवाह, स्क्रीन पे 1928 में दिखाओ, लिखी हुई है। मुझे स्क्रीन पे टू दिखाओ, रेफरेंस दो, चैप्टर 2 वर्स डाउनलोड लिंक दो। 1990। भाई बुक तू ला ले, और रेफरेंस लाना तुम्हारा, मैंने दे दिया भाई हुआ है, किस तू मेरा सन देख में मेरा तू लिखी सुन। मेरा 1928? किस सन में लिखी सलमान? 1928 बोला तुमने? यार मैंने बोला फर्स्ट 1928 नाम तुमने है। बोला मैंगो, मुझे चाहिए स्क्रीन के ऊपर रेफरेंस, लिंक दो किताब का। यार बैक स्टेज में जितने लोग जुड़े हैं, मैं जरा 2-3 छोड़ दें फौरन से पहले।
भाई बहुत लोग बायोग्राफी आप छोड़े जरा उसकी फटाफट जो फौरन से पहले प्लीज बैक स्टेज से। भाई सुन मेरी बात, जो एक उसकी सेकंड रुको यार, बायोग्राफी है, एक सेकंड रुको, बैक स्टेज में से कुछ लोगों को छोड़ने दो जरा, एक सेकंड। अब वापस आते हैं। हाँ जी, अब मुझे बताओ कौन सा है तुम्हारे पास लिंक, लिंक दो। मेरी बात आ रही है अपोजिट इमाम, मेरी बात आ रही है? क्लियर है बॉस। सलमान की बात गायब हो गई है, ओके इसको बुक लाने दो। हाँ जी साजिद, क्या हाल है आपके? वेलकम। ये किस आइटम पर कौन सा सर? जी सर, शिबली नुमानी की किताब ला के लगे हमें, हम जरा देखें कि कौन सी ऐसी हदीस है शिबली नुमानी की जो आयशा को जी 30 साल की साबित करे, और फिर वो बुखारी के साथ लड़ेगा, मुस्लिम के साथ लड़ेगा, अबी दाऊद के साथ लड़ेगा, सुनन नसाई के साथ लड़ेगा, किताबुस सित्ता के साथ शिबली नुमानी लड़ के आयशा को 17 साल का साबित करेगा। वो हदीस दे मुझे, मैं जरा देखूं कौन सी है ऐसी, किस नुमानी के अंदर इतनी ताकत है। और 100 साल पुरानी किताब से ये 1400 साल पहले, मतलब 1200 साल पहले हदीसों का जो भी लिखा गया उसको झुटलाएंगे। हदीस 1400 साल पहले लिखी हुई है। 14 साल पहले नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ 1200 साल पहले जो हदीसों की किताबें लिखी है सबसे पुराने टाइम की, उनका भाई उनको हिस्टोरियन झुटला भी एक जगह होती है भाई, हिस्टोरियंस यार हिस्टोरियन ला ना यार, दे ना यार, कह तो रहा हूँ, और क्या Reference करूं? दे दो भाई। मैंने लिंक दिया हुआ है ना भाई। किधर दिया लिंक? लेट मी और जस्ट मैं ओपन द लिंक। ओके लेट मी ओपन द लिंक। ओ तेरी, मैं कोई मसला ही नहीं है। लो जी, सलमान साहब का लिंक आ गया जी, मैंने खोल दिया। ओके जी, ये सलमान साहब का लिंक जो है मैं लाने लगा हूँ आप लोगों के सामने। सलमान साहब का लिंक दिया गया है? जी अच्छा, जी, लिंक लिंक ठीक लिंक लिंक। और यार ठीक तू ठीक, है ना, ओके। बदतमीजी करा कर, बदतमीजी ना करा कर। लो जी, मौलाना शिबली नुमानी का जो लिंक है, आप देखिए कि 2 नंबरी की इंतहा देखें, आर्टिकल पढ़ के आते हैं हमारे पास। ये ले पकड़े, मैंने इन्हें क्या बोला था, मुझे चेन ऑफ नरेशन देखनी है, मुझे देखना लिखा किसने है, चेन ऑफ नरेशन क्या है, उसे नरेट किसने कहा है और किसने किया है। हाउ ओल्ड वाज आयशा व्हेन शी गॉट मैरिड विद प्रॉफिट मोहम्मद। इस तरह के अंग्रेजी आर्टिकल बहुत सारे लोगों ने लिखे हुए हैं। ओके, भाई ये the बुक का prophet नाम भी made लिखा है, बुक request जाके 10 years पढ़। after beginning of the revelation. Aisha was 5-6 years before the beginning of revelation. सबसे पहले जो ये रेफरेंस है ना कि आयशा जो है वो रेवलेशन ऑफ मोहम्मद पे रेवलेशन आने से 4 से 5 साल पहले पैदा हो गई थी, ये रेफरेंस उसने कहां से लिया? द इरा ऑफ ब्लिस बाय मौलाना शिबली। नाउ मौलाना शिबली को ये कैसे पता लगा? इसकी चेन ऑफ नरेशन की है, इसकी ऑथेंटिसिटी है। सबसे पहला मुद्दा यहां पे खत्म हो जाता है। इसकी ना तो कोई चेन ऑफ नरेशन है, ना इसके पास चेन है, ना इसका रेफरेंस है। मौलाना ने जो बोल दिया, जो भौंक दिया, आपने मान लिया। इसकी चेन दो मुझे। अच्छा, तो जो तुम हदीस पेश कर मैंने रहे हो एक तो उसने किताब जो लिखी बोल हुई है, दिया उस मैं उसको किताब में मानूं, लिखा हुआ है कि मोहम्मद जो है वो एक हराम की औलाद थी। मानोगे? और मैंने कहा तू हराम की औलाद है। बस ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली। तुम्हारे कुछ कहने से और मेरे कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ता, जब तक लिखा नहीं हो, अप्रूव्ड नहीं हो, चेन ऑफ तो नरेशन तू नहीं हो, जाहिल किस्म का ऑथेंटिसिटी ना इंसान है हो। ना, तुझे कोई नॉलेज है ना कुछ, ऐसे आके बकवास लगानी होती है तूने यूट्यूब पे, और कुछ नहीं करना होता। कोई मसला जाहिल नहीं है, क्यों वो है? आपके हमारी कोई बात जो सियासत 2 से नंबर दिखा के रहे जो हैं हम। जाहिल लोग, भाई। एक तो दिखाया मैंने, जाके बुक पढ़, उसमें सब तो लिखा भाई हुआ है। मुझे दो, उसका रेफरेंस दो ना। तुम्हें इसीलिए तो कहा है, तुमने एक आर्टिकल दे दी जिसमें चेन लिखी नहीं भी। मैं कह रहा हूँ चेन नहीं है। मैंने बुक दे दिया ना, बुक का नाम दे दिया, उसमें से भाई उस देखो बुक से जाके, वो फर्क नहीं तुम्हारा पड़ता ना, काम। कोई भी बंदा कोई भी बुक लिख लेता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, इसने किताब हिस्टोरियंस पढ़ी भी नहीं होगी हदीस जिसका रेफरेंस दिखा रहा है। हदीस में कुछ भी। अच्छा, शियों की बुक में लिखी है कहीं? भाई तू शिया, नहीं, मुझे बता, शिया की बुक में कहाँ लिखा हुआ है कि शियाओं की 5 किताब में से लिखा हुआ है 6 कि साल हुई? आयशा एक एडल्ट्रस औरत थी। एडल्ट्रस मींस जनाकार औरत थी, और वो जहन्नम में सड़ेगी। और आयशा अच्छा, को वो लानतुल्लाह अलैह कहते हैं। शियों की किताबें अच्छा, मानेगा? किस बुक में लिखा है वो, जरा बताना। शियों हर कोई चीज देख ले, कोई स्कॉलर ने सी लिखा है, इमाम ने लिखा है, स्कॉलर ने लिखा है, इमाम ने लिखा उनकी सारी किताबें इमाम ने लिखी है। इमाम अली की तो लड़ाई की आयशा ने, इमाम अली की है। लड़ाई की तो वो तो चली गई जहन्नमी। शियों की बात करता है मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, ये जो मैं बता रहा हूँ, उसकी जो बड़ी बहन थी, उसकी जो एज है, उसमें सारा कुछ बता के, जो उसकी एज 17 आई और भाई है। उसकी एज को साबित तो करना। भाई साबित तो हो रही है ना, बायोग्राफी पढ़ना असमा की, उसकी जो बड़ी कौन सी बहन है उसकी बायोग्राफी? बायोग्राफी किसने लिखी हुई है बायोग्राफी? किस रेफरेंस है बायोग्राफी? बायोग्राफी से मैंने साबित किया था कि मोहम्मद अपने बाप के मरने के 4 साल बाद पैदा हुआ है।
व्हेन वाज मोहम्मद बोर्न, द बर्थ ऑफ मोहम्मद के ऊपर मेरी वीडियो है, देखिए 4.5 घंटे की है। बायोग्राफीज को लेके मैंने साबित किया मोहम्मद जो है वो 4 साल बाद, बाप के मरने के 4 साल बाद पैदा हुआ था। मानते हो? मानते हो? तुम्हारी बुक मानो, मेरी नहीं, तुम्हारी लिखी हुई बायोग्राफीज। अच्छा क्या लिखा हुआ है, कौन सी बुक में लिखा हुआ है? मैंने 4 घंटे की वीडियो है बर्थ ऑफ मोहम्मद के ऊपर, जिसके अंदर मैंने ये साबित किया है बायोग्राफीज के थ्रू मोहम्मद अपने बाप के मरने अच्छा के तो ये 4 भी साल तो बाद पैदा हुआ बायोग्राफी था। है, तो इसको तो ये भी तो बायोग्राफी है ना। लेकिन जो मैंने उस बायोग्राफीज में से रेफरेंसेस निकाले थे वो चेन वाले निकाले हैं। उस रेफरेंसेस को आपके मुफ्ती बमदर्द ने तबाह करने की कोशिश की थी, उसके बाद मैंने रिबटल दिया था। मुफ्ती ने कहा था क्यामत तक जवाब नहीं दे सकेगा, तीसरे दिन मैंने उसे जवाब दे दिया था। उसने उसके बाद मेरी दोनों वीडियोस पाकिस्तान में ब्लॉक करवा दी बमदर्द ने। मैंने बमदर्द की नाक में से घुसा के बाहर निकाला था। ठीक है, अब मेरे बच्चे वापस आते हैं। अगर बायोग्राफी में कोई चेन नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, कुछ लिंक नहीं है, तो उसको माना ही नहीं जाता। नंबर 1। नंबर 2, आपके पास कुतुब सित्ता है, कुतुब सित्ता के अंदर कोई चीज लिखी हुई है और वह सही में लिखी हुई है, उसका कंपैरिजन आप बायोग्राफी के साथ नहीं कर सकते हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कुतुब सित्ता की क्लियर हदीसें, 4 डिफरेंट चेन से क्लियर हदीसें आपको बता रही हैं। आयशा 9 साल की थी। आप मुझे बायोग्राफी का रेफरेंस लाके देने लाएं, कोई मसला नहीं है। लेट्स लुक इनटू इट। किसने कहा है, किसने नहीं कहा है, उसका नरेटर कौन है, कौन नहीं है। अगर तो ये वाकिदी ने कही हुई है, तो वाकिदी को तो आपका एक भी बंदा नहीं मानता। और बाय द वे ये वाकिदी ने कही हुई है, और वाकिदी को आपका एक भी स्कॉलर नहीं मानता। बुखारी से लेके जहां तक जाओगे वो वाकिदी को कहते हैं झूठा है। क्यों? वाकिदी ने एक और बड़ी मजेदार बात लिखी हुई है। मोहम्मद ने अपने फादर इन लॉ यानी कि ससुर को शराब के नशे में टुन करवा के अपनी शादी उससे करवाई है, खतीजा से। शराब के नशे में टुन करवा के, शराबे पिला पिला के। वाकिदी की हदीस मानोगे? आओ मानते हैं, सब मिलके वाकदी वाकदी खेलते हैं। वाकदी से तो मैं इस्लाम को 10 मिनट में तबाह कर दूं। मोहम्मद एक शराबी था वाकदी के मुताबिक, और उसने अपने ससुर को भी शराब परवाई अपनी शादी पे, ताकि वो हाँ कर ले उसकी शादी खतीजा के लिए। वाकदी को मानना है? वाकदी पे तो मुसलमानों की फटती है, तू मुझे वाकदी की हदीस लाके देगा? भाई तुझसे बात करना समझो जाहिल से बात करना है। मुझसे बात करना, जाहिल से बात करना नहीं। मैं फाड़ के रख रहा हूँ सबकी। क्यों? क्योंकि मैंने सारी किताबें पढ़ी हुई हैं। तुम लोगों को अंब का पता नहीं, आर्टिकल पढ़ के आते हो सिर्फ। हम का नहीं पता हुआ, बुक में सारा लिखा, मैंने बुक का रेफरेंस वही दिया, बुक जाके सारा अगर लिखा है, पढ़ना वो हो लेके तो आओ। पढ़ लो। किसने कही है ये? वाकिदी ने कही है ना। तो वाकिदी के मुताबिक मोहम्मद एक शराबी था, उसने अपने ससुर नहीं को नशा भाई, करवा जो के। हिस्टोरियन है, बायोग्राफी है, उसमें सारी रेफरेंसेस मैं के साथ उसकी हिस्टोरियन बुक में बायोग्राफी लिखा की हुआ बात है। कर रहा हूँ। भाई उसमें हिस्टोरियन सारी बायोग्राफी में ही रेफरेंसेस के लिखा साथ हुआ है लिखा हुआ है। कि मोहम्मद ने अपने ससुर को शराब पिला के टुन करवा के उसे शादी की फातिमा के साथ, सॉरी खतीजा के साथ। भाई इसने रेफरेंस के साथ बुक में लिखा हुआ है, जाके रेफरेंस पढ़। देना। तो मैं तेरे को दे रहा हूँ, बुक का नाम दे रहा हूँ, तो जाके पढ़ना भाई। चल तुझे काम जवाब तो दे दिया, तेरा है चल ना बच्चे, बुक्स पढ़ना, तू कह रहा चल है मैं शाबाश, बुक्स। चल गेट लॉस्ट। ये हो जाता है, इतनी सी बात है। जी एडम भाई, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले। सुन यार, तुम नबी को शराबी कह रहे हो? अस्तगफुरुल्लाह, जहन्नम में तू सड़ेगा एडम। सर मैं नहीं कह रहा, संभव। बाकी किताबें कह रही हैं। ये जो ताज अपने साथ में लिखा है। हाँ, ये जो तारीखों में लिखा है ना, वहीं पे लिखा है। और जो वाकिदी की हदीस है, इसलिए वाकिदी को सब लोग गालियां निकालते हैं। और ये वाकिदी की वाकिदी की हदीस मुझे रिवायत है साबित वो। करवा दे रहा। और वाकिदी की रिवायत से मुझे साबित करेगा कि आयशा 16 साल की थी। दूर फिटे मुझ इसके ऊपर, आय हाय इतनी हाय। सी औकात है। अच्छा, मोहम्मद अरबी को हमेशा छोटी लड़कियों से ही शादी करने का शौक था क्या? नहीं नहीं, सिर्फ बड़ियों के साथ भी है। आयशा ही नहीं, नहीं नहीं, बड़ी से तो की, लेकिन जैसे कि उम्मे सलमा की जब शादी की थी तो उनकी उम्र 26 थी, और मोहम्मद की उस वक्त उम्र 57 थी, है ना? और जब जैनब से निकाह किया था तो जैनब की उम्र 35 थी, और उस वक्त मोहम्मद अरबी की उम्र 59 थी। नहीं, ज़ैनब से निकाह तो पॉलिटिकल शादी थी ना। लेकिन छोटी बच्चियां बड़ा शौकीन यार। अस्तगफुरुल्लाह। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले। ये इससे खरेगा एप्पल। ये उसने आवाज आ रही किताब है? भी नहीं पढ़ी होगी, उसने कभी शिबली को जिंदगी में पढ़ा नहीं होगा कि उसकी एक किताब का उसने कवर भी देखा होगा, बट वो सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ के आ गया, और वो अरे जाहिल ये हमें कह रहे हो सियासत ये की बात कर रहे हैं। इमाम साहब